Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Dear students, our today's topic is adverb and its kinds. Among all the parts of speech, adverb is most interesting part. Adverb, it modifies a verb, an adjective or another adverb. Interesting इसलिए कि एक्शन बहुत ज़्यादा तादाद में दुनिया में हो रहे और ये जो मॉडिफाइड यानी एडवर्ब है तो ये बताते हैं कि एक्शन कैसे परफॉर्म होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर रिसाइटिंग द होली कुरान पैशनेटली. तो पैशनेटली बताता है कि उनके जो पढ़ना है वो किस तरह जज्बे के साथ पढ़ रहे हैं, तो पैशनेटली इज़ एडवर्ब. इसी तरह ही इज़ अ वेरी कीन स्टूडेंट. तो कीन इज़ एडजेक्टिव और वेरी बता रहा है कि कितना कीन, तो वेरी इज़ एडवर्ब that is modifying an adjective. Similarly, he is talking too softly. तो softly adverb है और to बता रहा है कि कितना ज़्यादा soft. तो यहाँ पर to जो है वो adverb को modify कर रहा है. तो इस तरह आपने देखा कि adverb they modify a verb, an adjective or another adverb. Let us start its kinds. First one is adverb of manner. तो adverb of manner they modify the action, they modify the verb. जैसे they are traveling quietly. तो traveling verb है और quietly बता रहा है कि वो action कैसे perform कर रहे हैं. तो जब कोई बताए word action कैसे perform हो रहा है, that is adverb of manner. Another example, he responded at the bell abruptly. तो abruptly बताता है कि उसने कैसे respond किया, तो abruptly is adverb of manner. Next is adverb of time. तो adverb of time they tell the time of an action. जैसे I shall see you tomorrow. तो tomorrow time बता रहा है, तो tomorrow is adverb of time. We'll get together soon. तो get together soon, तो soon बता रहा है कि कब हम get together होंगे. Soon is adverb of time. तो adverb of time they tell us the time when an action will be performed. Next is adverb of degree. तो adverb of degree what they do, they modify an adjective or another adverb. Hulk is awfully strong. तो awfully बता रहा है कि कितना strong, बहुत ज़्यादा. तो awfully is actually it is modifying an adjective. तो ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा, तो then it is adverb of degree. यानी ये बताता है कि जो adjective यानी जो quality है उसकी डिग्री क्या है, वो कितनी ज़्यादा, उसका extent कितना है. जैसे The tea is too hot to drink. कि इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती. तो to बता रहा है कि कितनी hot. तो hot adjective है, तो to क्या, adverb of degree. Take another example. He is marking the paper too strictly. तो strictly बता रहा है कि सख्ती से, तो it is adverb. तो it is adverb of manner. Strictly is adverb of manner. तो to बता रहा है कि कितना strictly, तो to is adverb of degree. The next is adverb of place. It tells about the place where some action occurred. For example, he went abroad. तो कहाँ चला गया, वो बाहर. तो abroad is adverb of place that signals towards some place. इसी तरह he lives here. तो here जगह जहाँ पर वो रहता. यहाँ पर एक बात ज़रा जहन में रखनी है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को नाउन जब जगह का नाम हो तो आपस में मिक्स नहीं कर देना. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से आई सा हिम इन द ग्राउंड, तो ग्राउंड इज़ नॉट एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट इज़ नाउन. वाई? ग्राउंड इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. तो एक जगह का नाम है, आपके जहन में आता है कि ये ग्राउंड है, तो ये कॉमन नाउन है. इसी तरह स्ट्रीट, वो भी आपके जहन में आता है कि स्ट्रीट ऐसी है. इफ़ आई से आई एम स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, तो आपके जहन में बनता है कि मैं कहाँ खड़ा होऊंगा. तो जब नाम होगा किसी जगह का, कॉमन होगा नाउन, लेकिन नाम ना हो, सिर्फ सिग्नल हो कि इधर उधर, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, बाहर अंदर, तो दोज आर एडवर्ब ऑफ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से ही परफॉर्म्ड इन द कंसर्ट. कंसर्ट किसी जगह का नाम नहीं है. कंसर्ट तो वो जैसे ग्राउंड में भी हो सकता है, छत पर भी हो सकता है, स्ट्रीट में हो सकता है. तो कंसर्ट कहीं भी. और जब किसी स्पेसिफिक जगह का नाम हो, जैसे कराची, लाहौर, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया. तो वर्ड्स लाइक हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अब्रॉड, अप, डाउन,
these when they tell something where action has taken place, तो where का आंसर जब दे तो then it is adverb of place. Next is adverb of frequency. तो adverb of frequency tells how frequently some action takes place, कि एक एक्शन कितनी दफ़ा रिपीट होता है. जैसे he often goes to Lahore, he seldom comes here, he holds this concert annually, I take my class weekly. तो वीकली, डेली, फोर्टनाइटली, एनुअली ये हमें बताते हैं कि कितनी दफ़ा कोई एक्शन रिपीट हुआ. तो जब ये कोई वर्ड हमें बताए कि एक्शन कितनी दफ़ा रिपीट हुआ तो दैट वर्ड इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज़ एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल से जिसका मतलब क्या होता है गालिबन. दिस एडवर्ब टेल्स अस हाउ श्योर इज़ द स्पीकर अबाउट द एक्शन, कि एक स्पीकर अपने काम के बारे में कितना श्योर है कि ये होगा. आई विल डेफिनेटली सू यू, दैट तो डेफिनेटली बताता है कि श्योर है कि वो ज़रूर, तो डेफिनेटली इज एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी. इसी तरह मे बी ही स्टेज हियर, कि शायद वो यहाँ रुकता है, तो मे बी कितना श्योर है उसके बारे में. यू माइट फाइंड हिम इन द गार्डन, तो माइट श्योर के शायद वहाँ पर मिल जाए लेकिन ज़्यादा चांसेस है. तो मे, माइट, मस्ट, डेफिनेटली, श्योरली, प्रोबेबली, तो ये वर्ड्स हैं जो बताते हैं कि कितना स्पीकर अपने एक्शन के बारे में श्योर है. तो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी.